Hello everyone, welcome to the channel Tutor Box, and today we are going to discuss about bacterial cell nucleoid. Okay, as we know bacteria is prokaryote, so basically we are discussing a prokaryotic cell nucleoid. Okay, if we compare prokaryote and eukaryote, then what we find, prokaryote cell contain nucleoid. Okay, prokaryotic cell contain nucleoid, however eukaryotic cell contain nucleus. So eukaryotic cell contain what? Nucleus. Okay, it contain what? Nucleus. But prokaryotic cell do not contain nucleus. So prokaryotic cell do not contain nucleus. Okay, क्लियर एवरीवन. सो ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट. ट्रू न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है किसके? प्रोकैरियोट के अंदर. और एग्जैक्टली ट्रू न्यूक्लियस हमें किस में मिलता है? यूकैरियोटिक सेल में. देन as we nucleus is the area where we found genetic material. Nucleus is the area where we found what? Genetic material. Okay, clear. And genetic material, so in eukaryote genetic material is found in nucleus, but what for the prokaryotic cell? So in prokaryote cell, instead of nucleus we found another structure that is known as a nucleoid. That is known as a न्यूक्लियोइड. ओके, सो न्यूक्लियोइड जो है इसके ये एक तरह से इरेगुलर स्ट्रक्चर होती है. ये कैसी स्ट्रक्चर होती है? इट इज अ इरेगुलर स्ट्रक्चर. इरेगुलर स्ट्रक्चर. ओके, बिकॉज इट डू नॉट कंटेन न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो न्यूक्लियोलस इज absent in prokaryote cell. Is absent in prokaryote cell. Okay, so the nucleoid is containing what? It containing genetic material of bacteria, or we can say prokaryotic cell. Okay, so it contain what? Genetic material. Okay, so genetic material कौन सा होता है? What kind of genetic material we found in prokaryote cell or bacteria? So genetic material is what? DNA. Okay, basically DNA. So what kind of DNA we found in prokaryote cell or bacteria cell? So it is a haploid. Okay, haploid. Okay, and single double stranded and circular, generally circular. Okay, generally we found a circular type of DNA. Okay, so if we are looking the structure of bacterial cell, so just look in this area. Earlier I already discussed this structure with you. So outermost structure is a we can say this blue color structure is a cell wall, and this area is a capsular region. Okay, so this green color lines are what? Plasma membrane. Inside the plasma membrane what we found? A irregular shape structure. So I made here by red color lining. So irregular structure is nucleoid. Inside the nucleoid we found three structure. Inside the nucleoid we found three structure. So this, look at this green color line. These green color circular lines is known as a DNA. Is known as a DNA. Okay. Apart from DNA, what other structure we found in the nucleoid? So in the nucleoid we found nucleoid associated RNA. This blue color triangle shape structure I made here. So this is nucleoid associated RNA, as well as we also found nucleoid associated protein, NAP. So this black color structure I made inside the nucleoid is what? Nucleoid associated protein. Okay, so these three structure we found. Along with that, we also found a extra chromosomal DNA within the cytoplasm of bacterial cell. So this extra chromosomal DNA is known as a plasmid. This extra chromosomal DNA is known as a plasmid. Okay, so generally what I say here, DNA is haploid, single, double stranded and circular DNA in most of the bacteria. But there are some bacteria which having exception from these. So just look at the bacteria. These are some bacterial species, and I am giving you the number of chromosome. I make you that single double stranded DNA we found, but these are some bacteria. So just look at the Rhodobacterium spheroids. In Rhodobacterium spheroids we found true
2 chromosome and 2 chromosome as well as 2 circular chromosome. Okay. Then Agrobacterium rhizogenes, in this we also found true chromosome, circular chromosome. Okay. Then Agrobacterium tumefaciens. So in Agrobacterium tumefaciens we found one circular and one linear chromosome. Okay. Then Brucella suis. So Brucella suis has many strains. So in some strain we found two circular DNA and in some strain we found one circular DNA. Okay. And if we are talking about the Vibrio cholera, then in Vibrio cholera we found two chromosome. Okay. But one is large, but what we found, one is large and another one is short, 1/4 in length. Okay, 1/4 in length. So these are the some differences from other bacteria. Generally we found सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, जनरली हमें सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है, बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनके अंदर की क्या होता है, एक्सेप्शन होता है. तो इन्हीं एक्सेप्शंस पर कुछ एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछते हैं. तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोगों को याद रखना कि कौन कौन से बैक्टीरिया में 2 सर्कुलर डीएनए मिल रहे हैं और किस में 1 सर्कुलर और 1 लीनियर मिल रहा है. तो आप यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेशली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस और विब्रियो कोलेरा. ओके, सो नाउ अब यहाँ बात करते हैं कि जो न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड के अंदर हमें 3 स्ट्रक्चर मिल रही है. डीएनए मिल रहा है और न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड आरएनए मिल रहा है और न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन मिल रहा है. ओके, तो यहाँ पर होता क्या है, ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेंस होती है. ओके, ये स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये सब आपस में बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं. तो यहाँ जो डीएनए होता है वो कॉम्पैक्ट होता है और डेंस होता है. तो इसका कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट किस तरह से होता है, इसका कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट किस तरह से होता है डीएनए का. तो यहाँ देखिए डीएनए के कॉम्पैक्ट होने की कुछ स्टेप्स हैं, वो आप देखिए. तो जनरली यहाँ देखिए डीएनए जो है, यहाँ मैंने जो रेड कलर की लाइन आपके लिए बनाई है, ये डीएनए के कॉम्पैक्ट होने की स्टेप्स मैंने बता रहा हूँ मैं आप लोगों को. तो जो रेड कलर की लाइन है वो क्या है, डीएनए, और यहाँ पर जो ब्लैक कलर में सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाई है वो क्या है, न्यूक्लियर एसोसिएटेड प्रोटीन. So nucleoid associated protein are connected with these DNA. Okay, so यहाँ पर आप देखिए जनरली होता क्या है, जो न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन है वो इससे कनेक्टेड रहते हैं. ओके, अब डीएनए, अगर डीएनए को कॉम्पैक्ट होना है तो उसके लिए डीएनए को क्या होना पड़ेगा, बैंड होना पड़ेगा. डीएनए को क्या होना पड़ेगा, बैंड होना पड़ेगा. सो द फर्स्ट स्टेप इज डीएनए बैंडिंग. ओके, सो डीएनए यहाँ पर आप देखिए डीएनए बैंड हो रहा है. ओके, क्लियर. सो अब डीएनए 2 तरह से बैंड हो सकता है. क्या, एक तो हो सकता है शार्प बैंड, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, शार्प हो गया, या फिर फ्लेक्सिबल. तो इस तरह से मूवमेंट जो है वो सर्कुलर और वी कैन से फ्लेक्सिबल डीएनए बैंडिंग हो गई. ओके, अब फ्लेक्सिबल और शार्प डीएनए बैंडिंग होने के बाद में डीएनए इस तरह से भी अरेंज हो जाएगा, डीएनए स्टिफनिंग हो जाएगी. ओके, कुछ बैक्टीरिया में ये भी हो जाता है और कुछ बैक्टीरिया में ये स्टेप नहीं होती, डायरेक्ट उसके बाद में क्या हो जाता है, डीएनए ब्रिजिंग हो जाएगी. मतलब जो 2 डीएनए जब टर्न करेगा, डीएनए जो कर्व करेगा, तो यहाँ पर आप देखिए डीएनए कर्व करेगा. तो डीएनए का जो कर्विंग है, डीएनए की कर्विंग किस वजह से हो रही है, ब्राउनियन मोशन से होता है. तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डीएनए की जो कर्व नेचर है. ओके, यहाँ देखिए बैक्टीरिया के अंदर जो ये हम अगर दिस इज द न्यूक्लियोइड रीजन, अगर इसमें हम डीएनए बनाएं तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से डीएनए में ये कर्व मैंने बनाया आप लोगों के सामने. तो ये कर्विंग जो नेचर है ये किस वजह से आ रही है, ब्राउनियन मोशन की वजह से आ रही है. किस वजह से आ रही है, ब्राउनियन मोशन की वजह से कर्वेचर नेचर आ रही है. ओके, क्लियर. तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, बाय विच मोशन बैक्टीरिया गेट इज कर्वेचर नेचर. ओके, सो ब्राउनियन मोशन आप याद रखिएगा. अब यहाँ पर आप देखिए इसके बाद ब्राउनियन मोशन की वजह से जो कर्वेचर नेचर आई है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगी, डीएनए की ब्रिजिंग हो जाएगी. ओके,
सो इस तरह से ब्रिज बन जाते हैं और डीएनए की ब्रिज बनने के बाद में यहाँ पर डीएनए की बंचिंग हो जाती है और बंचिंग होने के बाद में डीएनए की रैपिंग हो जाती है। तो इस तरह से सर्कुलर में यहाँ डीएनए बन गए और ये न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन हो गए और साथ में हमें न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड आरएनए भी यहाँ पर अटैचमेंट में मिल जाते हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं ई कोलाई में मिलती हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया में हमें मिलती है। ओके, तो इन स्टेप्स को आप याद रखिएगा। डीएनए बेंडिंग हो गई, डीएनए स्टिफनिंग हो गई, डीएनए ब्रिजिंग हो गई, बंचिंग हो गई एंड रैपिंग हो गई। या तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर द स्टेप ऑफ डीएनए कंडेंसिंग। ओके, क्योंकि डीएनए यहाँ पर कंडेंस हो रहा है छोटी सी जगह में। ओके, सो कंडेंसिंग की कौन कौन सी स्टेप्स है इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर एवरीवन? सो नाउ जस्ट लुक एट द हाउ वी कैन विजुअलाइज द न्यूक्लियोइड। ओके, सेल के अंदर जो बैक्टीरिया की सेल है उसके अंदर न्यूक्लियोइड को किस तरह से हम विजुअलाइज करेंगे, मीन्स माइक्रोस्कोप में किस तरह से देखेंगे। तो यहाँ देखिए दो तरह से हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप। ओके, एंड सेकेंड वन इज फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। सो लाइट माइक्रोस्कोप में हम बैक्टीरिया को जो स्टेन करेंगे वो कौन सा स्टेन हमारा होगा, दैट इज फ्यूजन स्टेन, दैट इज फ्यूजन स्टेन। ओके, फ्यूजन स्टेन की मदद से हम बैक्टीरिया को यहाँ पर न्यूक्लियोइड को स्टेन करेंगे क्योंकि जो डीएनए है वो इससे स्टेन हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल जो है वो फ्यूजन स्टेन से स्टेन हो जाएगा। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में हम जनरली दो तरह की डाई को यूज़ करते हैं। द फर्स्ट वन इज DAPI, डापी। ओके, फर्स्ट वन इज डापी एंड अनदर वन इज इथिडियम ब्रोमाइड। सो दीज टू आर इम्पॉर्टेंट। यहाँ ध्यान दीजिए दोनों ही डाई जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। ओके, यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियोइड जो है वो किससे स्टेन होता है। अगर लाइट माइक्रोस्कोप में स्टेन करना है तो फ्यूजन स्टेन से हम स्टेन करेंगे और अगर फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप से स्टेन करना है तो डापी हो गए हमारे पास में और इथिडियम ब्रोमाइड हो गया। तो यहाँ MCQ बनता है, ध्यान दीजिए GPAT में, नीट PG में और CSIR नेट में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। क्लियर एवरीवन? तो होपफुली यहाँ पर जो भी मैटर मैंने आप लोगों को न्यूक्लियोइड के बारे में दिया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे जिन पर कि क्वेश्चंस आता है, जैसे कि कौन कौन से बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए हैं और एक से ज़्यादा डीएनए हमारे पास में मौजूद हैं। इसके अलावा कौन कौन सी डाई हम स्टेनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है या नहीं होती है। ओके, सो यहाँ मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं न्यूक्लियोइड के बारे में जो कि पुराने एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। ओके, सो आप इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। Hello everyone, discussing the question number 1. In prokaryotic cell, which of the following present? A. Nucleus, B. Nucleosome, C. Nuclear membrane, D. Nucleoid. Question number 2. In prokaryotic cell, nucleoid contain A. DNA, B. Nucleoid associated protein, C. Nucleoid associated RNA and D. all of these. Question number 3. In prokaryotic cell, the DNA present in nucleoid is A. Single haploid, B. Circular DNA, C. Double stranded DNA, D. all are correct. Question number 4. In Vibrio cholerae cell, the DNA present is A. Only one DNA present, B. Two circular DNA in which one large and another one is small, 1/4 in length, C. 4 circular DNA, D. 2 linear DNA. Question number 5. In bacterial tumefaciens cell, the DNA present is A. Only one DNA, B. 2 circular DNA in which one large and another one is small, 1/4 in length, C. 4 circular DNA, D. 2 DNA, 1 circular and 1 linear. So I already given answer of all of these question in my lecture, so go through with the lecture and answer in comment box. और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।